So hello friends, this is rapid revision series of medicine. So we are going to see all top 30 high yield diseases with their explanations, so it can be very beneficial for your exam. So this will be important for your NEET PG, INI CET and FMG exam. Okay, so I am going to use both English as well as Hindi. तो स्टार्ट करते हैं पहले डिजीज से जो कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है. ओके, सो MI is very important for your upcoming exam in which STEMI and नॉन स्टेमी. ओके, तो हम देखते हैं स्टेमी वर्सेस नॉन स्टेमी में क्या होता है, क्लिनिकल उसके सिम्टम्स क्या है. तो क्लिनिकल ट्रायल में इसमें क्या होगा, क्रशिंग सबस्टर्नल चेस्ट पेन होगा. ओके, डायफोरेसिस होगा और रेडिएशन टू लेफ्ट आर्म एंड जॉ. अगर रेडिएशन लेफ्ट आर्म एंड जॉ है तो इसका मतलब कि MI होगा, लेकिन हमें वो कंफर्म नहीं है. इसलिए कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ECG करना पड़ेगा और बायोमार्कर्स की टेस्ट करनी पड़ेगी. तो ST एलिवेशन दिखेगा ECG में. ओके, जो कि मोर देन 1 mm होगा, जिसे हम स्टेमाई कह सकते हैं. और अगर ST डिप्रेशन होगा या T वेव इन्वर्जन होगा तो वो होगा नॉन स्टेमाई. ओके, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है कार्डियक ट्रोपोनिन, जो कि बायोमार्कर है. ये आपको याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट स्पेसिफिक बायोमार्कर है. ओके, जो कि 24 आवर्स तक पीक रहेगा MI में. ठीक है, और एलिवेटेड तो वैसे भी 7 to 10 डेज तक रहता है. फिर री इन्फ्रैक्शन के लिए CKMB जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये होता है फॉर री इन्फ्रैक्शन. ओके, तो ये हाई यील्ड एग्जाम पॉइंट्स है, ये पूछते हैं. दिस थिंग्स आर आस्क्ड इन योर एग्जाम, सो प्लीज रिमेंबर द बायोमार्कर्स, ECG फाइंडिंग्स. ओके, एंड ऑल्सो द कार्डियक ट्रोपोनिन विच इज मोस्ट स्पेसिफिक एंड CKMB विच इज यूजफुल फॉर री इन्फ्रैक्शन. So let's see treatment protocol. By remembering MONA B, this is the mnemonic for drugs. Okay, M stands for morphine, O stands for oxygen if the oxygen is below 90%. Okay, N stands for nitroglycerin, A stands for aspirin. Okay, and also we have to give beta blocker. So this is MONA. So remember, in myocardial infarction you have to remember this treatment protocol. The mnemonic is MONA, which is morphine, oxygen, nitroglycerin, aspirin and beta blockers. Okay, and also some important things like we have to do PCI with 90 minutes. This is very important, door to balloon. Okay, so PCI within 90 minutes or thrombolysis. Okay, thrombolysis within 30 minutes. We can give altiplase or retiplase. These are very important drugs. These are very important drugs you have to remember for thrombolysis. And remember the timings. Okay, for PCI 90 minutes and for thrombolysis 30 minutes. So this is everything about myocardial infarction, which is very important for your exam. Just remember. Now next is heart failure. Okay, with reduced ejection fraction. So if you see the pathophysiology, we can get question like how much percentage, like below percentage ejection fraction would be seen in heart failure. So the answer will be ejection less than 40%, means the ongoing thing is going with like heart failure. Okay, also progressive LV remodeling driven by RAS and SNS activation. So the presentation will be same, kind of similar to MI, but in MI you can see the most important thing like crushing substernal chest pain. Okay, but here the important thing will be bilateral basilar crackles, dyspnea on exertion, orthopnea. Okay, also S3 gallop and elevated JVP. So you can remember or differentiate things between heart failure and MI. तो
हार्ट फेलियर में देखिए इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40% होता है और इसमें डिस्पनिया होगा, मतलब कि कोई भी काम करने से पहले उसे बहुत ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत पड़ेगी या सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है। ऑर्थोपनिया होगा, एस्थ्री गैलोप दिखेगा, एलिवेटेड जेवीपी होगा और बायलैटरल बैसिलर क्रैकल्स दिखेंगे ऑस्कल्टेशन करते वक्त, ओके। अब डायग्नोस्टिक एंड गोल्ड स्टैंडर्ड इकोकार्डियोग्राम हमें करना है, ठीक है। और इको में चेंबर साइज दिखेगी। इको किस लिए होता है? इको इज मोस्टली फॉर एनाटॉमी ऑफ हार्ट, मतलब कि सारी चीज़ें हम एनाटॉमिकली उसके स्ट्रक्चर, साइज, शेप, फंक्शन के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें दूसरा एक होता है टेस्ट, वो होता है एंटी प्रो बीएनपी, जो कि मोर देन 125 आना चाहिए। अब क्या है? 4 पिलर्स ऑफ मोर्टेलिटी रिडक्शन, मतलब कि 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेथ होने से रोक सकती है। पहला है क्या है? सैक्यूबिट्रिल या वॉरसेटन, फिर आता है एसीआई, ठीक है, एसीई या एआरबीज, फिर बीटा ब्लॉकर्स जिसमें हम कार्डिविडॉल दे सकते हैं, बिसोप्रोलोल दे सकते हैं, मेटोप्रोलोल दे सकते हैं, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा एमआरए जो कि स्पाइरोनोलैक्टोन होगा या एप्लीरिनॉन होगा, और एसजीएलटी2 इनहिबिटर्स जैसे डापाग्लिफोजिन या एम्पाग्लिफोजिन, ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, आपको याद रखना है, जैसे कि सैक्यूबिट्रिल, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स, एसीआई इनहिबिटर्स, कार्विडिलॉल या बिसोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल, स्पाइरोनोलैक्टोन, ओके, एसजीएल2 इनहिबिटर्स जो कि डापाग्लिफोजिन होगा या एम्पाग्लिफोजिन होगा। तो देख लिए ये 2 टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। अब इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज? एंडोकार्डाइटिस में जो है इसका कॉज क्या होगा? स्टेफिलोकोकस ओरियस होगा, जो कि हमें दिखेगा आईवी ड्रग यूजर्स में, ओके, जो कि मोस्ट अफेक्ट करेगा ट्राइकस्पिड वॉल्व, ओके। अब ये हो गई चीज तुम्हारी स्टेफिलोकोकस ओरियस की, इतनी। अब और जो ये विरिडेंस जो है, विरिडेंस में हम देखेंगे ये सब एक्यूट होगा, डैमेज्ड वॉल्स डेंटल प्रोसीजर्स। अगर क्वेश्चन में इफ यू आर गेटिंग द की पॉइंट ऑफ डेंटल प्रोसीजर्स और पेशेंट इज गोइंग टू डेंटिस्ट और रिमूविंग हिज टीथ और समथिंग हिस्ट्री सिमिलर टू दिस, देन यू हैव टू select the option as viridance, which is very important, okay. So these are things, and if the things are associated with colon cancer, then the criteria is changing to bovis, you have to remember. Now there is one important criteria which is modified Duke criteria, okay. There are 2 major or 1 minor, or 2 major or 1 major plus 3 minors or 5 minors things, okay. So what are the classical signs? You have to remember this modified Duke criteria, this is very important. Then classic signs. What are classic signs? Let's see. The classic signs will be Janeway lesions, okay, which are painless erythematous macules on palms and soles. Please check this image on your Google, okay. Just write Janeway lesions in infective endocarditis, you will get those images which can be asked in your exam. Also the ossular nodes which are painful, okay. So Janeway lesions, they are painless, but ossular nodes are painful, okay. And these nodules are on digits, so remember the difference. Janeway lesions are seen on palms and soles, which are erythematous and painless, but ossular nodes are painful, which are on digits. Also Roth spots, which are retinal hemorrhages, okay, and splinter hemorrhages. But very important thing, these both are like Janeway lesions and ossular nodes, okay. Now therapy we have to give, start with antibiotics, vancomycin and ceftriaxone, in which for 4 to 6 weeks, okay. So remember these 3 things, very important. Ossular nodes, Janeway lesions, modified Duke criteria. If there is staphylococcus aureus, then you will get history of IV drug users. If you are getting history of dental procedure something, then you have to go with viridance, and if there is anything associated with colon, then you have to go with bovis. So these are important. I am just doing star like things just to remember which things are important, okay. So now let's talk about rheumatic fever.
So in rheumatic fever, what is the etiology? This is post group A beta hemolytic streptococcus pharyngitis. Okay, these are very important things. Now post group A beta hemolytic streptococcal, you have to remember, this is very important. Here in rheumatic fever there is one criteria, it's Jones criteria. You have to remember this name. And modified Duke's criteria was seen in infective endocarditis. In rheumatic fever you will get Jones criteria. Okay, in Jones criteria you have to remember as a mnemonic major. Okay, major is very important. Mnemonic over here. Sorry, this is not mnemonic here. These are major criterias. Okay, so joints in which you can get migratory polyarthritis, osteocarditis, nodules which will be subcutaneous, erythema marginatum and Sydenham chorea. Okay, these are very important things. Now most common wall affected, which is the most common wall affected, very important thing, this is mitral wall. Okay, so you can get the mitral regurgitation or mitral stenosis, which can be chronic and acute. Mitral regurgitation will be acute, mitral stenosis will be chronic. Okay, so prophylaxis is benzathine penicillin G. Okay, intramuscular every 3 to 4 weeks. This is very important. I am just doing star marks so you can remember which things are very important. Okay, and also remember this Jones criteria like joints, osteocarditis, nodules, erythema and Sydenham chorea. Okay, now hypertensive crisis, urgency versus emergency. What is the definition for hypertension? It is more than 180 to 120. Okay, systolic 180, diastolic 120. Now hypertensive emergency, you will see most important the end organ damage present. Okay, encephalopathy, aortic dissection, acute pulmonary edema or acute kidney injury. Okay, you have to treat in ICU, you can't treat normally. And also we have to give some drugs like, which are very important, IV nicardipine, labetalol or nitroprusside, or reduce MAP by max 25% in first hour. So the things which we have to remember in this, it will be end organ damage present, encephalopathy, aortic dissection or acute pulmonary edema or also AKI. Also we have to remember drugs like IV nicardipine, labetalol and nitroprusside. Okay, these are the important things which is seen in hypertensive emergency. Now we will see hypertensive urgency. So what is difference in hypertensive emergency and urgency? In hypertensive emergency there were end organ damage. Okay, there was end organ damage present, but in hypertensive urgency there are no acute target organ damage. Okay, this is only the important difference you can see here. So we will see how we are going to treat it. We have to give captopril, labetalol and amlodipine over 24 to 48 hours. These drugs are very important, you have to remember. Okay, captopril, labetalol and amlodipine. Now aortic dissection, which is exception. This is like rapidly reduce systolic BP2 less than 120 mmHg within 20 minutes using IV labetalol plus nitroprusside. So these two drugs are very important in aortic dissection, which are labetalol, IV labetalol and nitroprusside. Okay, you are clear? You seen hypertensive emergency, how you can differentiate with end organ damage is present in hypertensive emergency, and there is no any end organ damage in hypertensive urgency, and the drugs which are very important. So let's start with community acquired pneumonia. Okay, so etiology, this is caused most common overall streptococcus pneumoniae. Okay, I have written in my high yield section of YouTube video of pathology and microbiology. Okay, so streptococcus pneumonia, which is most common overall. Okay, and if you see the color of sputum, तो कलर स्पुटम आपको मिलेगा रस्टेड कलर. रस्टेड कलर कैसा होता है आपको पता ही होगा. ठीक है, तो रस्टेड कलर का स्पुटम मिलेगा. ऑल्सो इसका कॉज कौन करेगा? माइकोप्लाज्मा निमोनिया इन यंग अडल्ट. अगर यंग अडल्ट की है
कोई हिस्ट्री तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया करेगा। और कौन सा करेगा? लीजियोनेला करेगा। ठीक है, लीजियोनेला में आपको हाइपोनेट्रीमिया दिखेगा, जीआई सिम्टम्स दिखेंगे और कॉन्टेमिनेटेड वाटर की वजह से हो सकता है। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। कौन सी है? मोस्ट कॉमन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, माइकोप्लाज्मा जो कि यंग अडल्ट में दिखेगा, और लीजियोनेला जो कि जीआई सिम्टम्स और कॉन्टेमिनेटेड वाटर से एसोसिएट करेगा। अभी इसमें जो सीवियरिटी स्कोरिंग होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं कर्व 65। अब इस कर्व 65 में क्या होगा हम देखते हैं। इसमें कन्फ्यूजन, यूरेमिया मोर देन 19, रेस्पिरेटरी मोर देन 30, बीपी लेस देन 90/60 और एज मोर देन 65। ओके, और स्कोर अगर मोर देन 2 होगा तो हमें इसको हॉस्पिटल में एडमिशन कराना है। सो सीवियरिटी स्कोरिंग इज कर्व 65। यू विल सी कन्फ्यूजन, यूरेमिया मोर देन 19, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30, बीपी लेस देन 90/60, एज more than 65, and if the score is more than 2 then we have to consider hospital administration. Okay, so this is very important. What are the treatment things? So treatment we have to start with amoxicillin or azithromycin. Okay, these are important antibiotics. We have to give outpatient treatment. Inpatient treatment always we have to start with IV ceftriaxone, azithromycin or levofloxacin also, or respiratory fluoroquinolones which is levofloxacin. This is exceptional, but mostly you have to remember this: IV ceftriaxone, azithromycin, amoxicillin, azithromycin, doxycycline. Okay, these are outpatient treatment and inpatient treatment. So you are done with community acquired pneumonia. Okay, now let's see about pulmonary tuberculosis. So pathology will be Mycobacterium tuberculosis, which is most common thing for the etiology of TB. You can see cascading granulomas with Langerhans cells, okay, which is very important thing you can get in question, and also upper lobe apical involvement in reactivation. So these 3 points are very important: Mycobacterium tuberculosis, cascading granuloma with Langerhans cells, okay, and upper lobe apical involvement in reactivation. Diagnosis always CBNAT, which is very confirmatory, and you can also go with gene experts which can detect MTB and rifampicin resistant within 2 hours. Okay, also some stains like acid fast stains, which is ZN stains. So you have to remember everything which is very important: sputum, CBNAT, gene expert detects MTB and rifampicin resistant within 2 hours, acid fast stain which is ZN stain. Okay, so let's see about treatment. Treatment strategy is HRZE. You can see the short form HRZE, like isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol. Okay, you have to remember these drugs. All 4 drugs are very important. Okay, and also just try to see the most important thing, side effects, which are asked in PSM medicine. Okay, also in pharmacology. So these things are very important. This is also you have to remember, like rifampicin, there will be orange fluids. Orange fluids mean there will be orange color of urine. In isoniazid there will be peripheral neuropathy. You have to prevent with pyridoxine जो कि B6 होता है, और पायराजिनामाइड जो होता है वो करेगा हाइपर यूरेसिमिया, गाउट क्रिएट करेगा, और इथाम्ब्यूटल जो भी है वो ऑप्थेल्मोलॉजी में भी से क्वेश्चन आ सकता है, जो कि ऑप्टिक न्यूराइटिस करेगा या रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस करेगा. वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस थिंग्स आर, यू हैव टू रिमेंबर. डेफिनेटली यू विल get this question in your exam. Okay, so you mostly have done with pulmonary tuberculosis, pathology, diagnosis, treatment, and side effects of these 4 drugs, okay, which are HRZE regimen. Now let's talk about bronchial asthma. Okay, bronchial asthma, very important thing. Pathophysiology, it is reversible airway obstruction. Okay, and also bronchial hyperresponsiveness because of allergic condition you can get. Also in chronic eosinophilia inflammation, which is IgE mediated. So you have to remember these 3 things, which is reversible airway obstruction, bronchial hyperresponsiveness, chronic eosinophilic inflammation. Also
The key points for exam or the high yield things are spirometry, which will be FeV1 into FVC, which can be less than 0.70. Okay, and reversibility is equal to increase in FeV1 by more than 12% and more than 200 ml. These ratios are very important, you have to remember. Okay, after inhaled SABA, okay, sorry for not saying these three things. After inhaled SABA, so the things you have to remember: FeV1 by FVC less than 0.70. okay, and reversibility increases in FeV1 by more than 12% and more than 200 ml after inhaled SABA. So this line I forgot it, after inhaled SABA. This is very important, it can be asked in your exam. Okay, so let's see which are the guidelines. So GINA guidelines are very important in bronchial asthma. So in this low dose ICS formoterol preferred as both controller and reliever across all steps. So you have to remember ICS formoterol. Okay, in acute severe asthma, the whole drugs will be some kind different. You have to only remember this salbutamol. Okay, salbutamol many times they have asked in your exams, and with that we also can add ipratropium, IV hydrocortisone and magnesium sulfate. So two drugs are very important, salbutamol and IV hydrocortisone. We have to give corticosteroids, so there can be less inflammation to bronchial airways. Okay, so these are everything about bronchial asthma. You have to remember it is reversible airway obstruction. You have to remember the spirometry वाला thing. Then जीना guidelines होता है जिसमें ICS formoterol हम प्रीफर करते हैं बोथ कंट्रोलर एंड रिलीवर के लिए, ठीक है. और एक्यूट सीवियर अस्थमा में हम क्या कर देंगे, इसमें हम देखेंगे साइलेंट चेस्ट साइनोसिस होगा, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, और साथ में हमें ऑक्सीजन देना है, नेबुलाइज साल्ब्यूटामॉल देते हैं. ओके, इसको मैं डबल ये टिक करता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. इप्राट्रोपियम भी देते हैं और IV हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं. सो यू आर डन विद bronchial asthma. Now let's talk about chronic obstructive pulmonary disease, which is very important. Okay, the etiology will be always sutta, which will be cigarette smoking, primary cause. Second will be alpha 1 antitrypsin deficiency, जो कि हम यंग नॉन स्मोकर्स में दिखते हैं. अगर नॉन स्मोकर वाली बात आती है तो हमें क्या करना है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी करनी है. ओके, सो पहला प्राइमरी कॉज होगा सिगरेट स्मोकिंग, सेकंड होगा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी. किस में होगी, नॉन स्मोकर में होगी, जो कि पैन एसिनार एम्फिजिमा देख सकते हैं हम यंग नॉन स्मोकर पेशेंट्स में. अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डायग्नोसिस पोस्ट ब्रोंकोडाइलेटर, मतलब ब्रोंकोडाइलेटर देने के बाद FeV1 बाई FVC रेशियो सेम अस्थमा के जैसे होगा, लेस देन 0.70, विच विल बी इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि ये रिवर्स नहीं होगा. सो आपको ये याद रखना है, ठीक है. आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, प्राइमरी कॉज रखना है, एंटी ट्रिप्सिन डिफिशियंसी जो कि यंग नॉन स्मोकर्स में दिखाई देगा. तो क्वेश्चंस में आपको ये की पॉइंट्स याद रखने हैं. ओके, अब फिनोटाइप्स देखते हैं जो कि होगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिसे हम ब्लू ब्लोटर्स भी कहते हैं. ओके, तो इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ब्लू ब्लोटर्स हम कहते हैं, इसमें प्रोडक्टिव कफ होता है, हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया होता है, वर्सेस एम्फिजिमा. तो दो ये अलग चीज़ें हैं. ओके, दो अलग चीज़ें हैं. कौन सी है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जिसे हम ब्लू ब्लोटर्स कहते हैं, और एम्फिजिमा जिसे हम पिंक पफर कहते हैं. ठीक है, अब दोनों में डिफरेंशिएशन क्या होता है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बहुत कफ होगा, ओके, और एम्फिजिमा में आपको क्या दिखेगा, बैरल चेस्ट दिखेगा. ये दो चीज़ें आपको याद होगी तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. साथ में एम्फिजिमा में अल्वियोल डिस्ट्रक्शन एंड डिस्पनिया भी हम देख सकते हैं. ओके, अब मॉर्टेलिटी रिड्यूसिंग इंटरवेंशंस, मतलब कि डेथ, इस चीज़ से डेथ होने से हम रोक कैसे सकते हैं, हाउ वी कैन लिमिट द मॉर्टेलिटी इन दिस क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज पेशेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टॉप विथ स्मोकिंग. ओके, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करना है. ओके, और लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी करनी है. ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा इसका ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी. ट्रीटमेंट मतलब एक ही है इसमें कि आपको ट्रिगर्स बंद करने हैं जैसे स्मोकिंग है, और साथ में ऑक्सीजन थेरेपी देना है जो कि लॉन्ग टर्म होगा, और प्लस आपको सर्जरी का ऑप्शन प्रोसीजर करना होगा, तो लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी करनी पड़ेगी.
Okay, you are done with COPD. Now let's talk about pulmonary embolism. Okay, इसमें एक ट्राइड होता है, उसका नाम है ट्राइड ऑफ विर्चॉ. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकते हैं. सो ट्राइड ऑफ विर्चॉज में क्या होगा? एंडोथेलियल इंजुरी, स्टासिस एंड हाइपरकोएबिलिटी. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, नीट पीजी में, एफएमजी में आता है. प्रेजेंटेशन कैसा होगा? प्रेजेंटेशन इसमें सडन डिस्पनिया होगा, प्लूरिटिक चेस्ट पेन, टैकिनिया एंड हेमोप्टोसिस होगा. ओके, ईसीजी में क्या दिखेगा? साइनस टैकिकार्डिया, मोस्ट कॉमनली साइनस टैकिकार्डिया दिखेगा. और पैटर्न क्या होगा? जो कि रेयर होता है, जो कि S1Q3 T3 पैटर्न आपको याद रखना है, S1Q3 T3 पैटर्न. ओके, और साइनस टैकिकार्डिया मोस्ट कॉमनली ईसीजी में दिखता है, और आरवी स्ट्रेन भी साथ में दिखेगा. इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन होगा गोल्ड स्टैंडर्ड, जो कि सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, जिसे हम CTPA कहते हैं, वो गोल्ड स्टैंडर्ड होगा. और डी डायमर भी साथ में होगा, ठीक है, और वेल स्कोर भी यूज़ करते हैं. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी विच इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड, डी डायमर फॉर लो प्रोबेबिलिटी एंड वेल स्कोर. सो how many things are important? Triad of Virchow, then we have to see ECG में you can get S1QT3T pattern, also CT pulmonary angiography, D dimer and also well score. Okay, which is very important. Let's talk about management. In management we start with low molecular weight heparin. Okay, also thrombolysis we can do with alteplase. In massive pulmonary embolism with hemodynamic instability, if the patient is instable, then we have to do thrombolysis, or else we have to give the low molecular weight heparin. Okay, so this is everything about pulmonary embolism. We have done with this thing. You have to remember triad of Virchow, endothelial injury, stasis, hypercoagulability. Okay, sinus tachycardia most commonly, S1QT Q3 T3 pattern. Okay, CT pulmonary angiography gold standard, well score is also used, and management low molecular weight heparin. Okay, and in massive thing we have to start with thrombolysis. Now let's see about acute kidney injury, which is AKI. Okay, so the criteria here used is KIDGO. So this is very important criteria, you have to remember the name. Okay, and also you will see in this criteria there will be increase in serum creatinine more than 0.3. okay, very important, within 48 hours, or more than 1.5 in baseline within 7 days. This is very important. And also urine output will be less than 0.5. This is the criteria for AKI. Classification will be very important. Pre-renal, okay, blood urea nitrogen to creatinine more than 20, and also the intrinsic you can get the muddy brown cast, very important, and post renal urinary obstruction. So these are classification which is very important. Burn to creatinine ratio, also muddy brown cast, okay, and urinary obstruction. But these two things are very important, you have to remember. Also this creatinine thing which is more than 0.3 within 48 hours, and more than 1.5 within 7 days. This is very important thing you have to remember. Now what are the causes? Causes will be ischemia or nephrotoxins like aminoglycosides. Contrast, which contrast? Cisplatin. Contrast will be used mostly during any procedure, for example angiography, we use the contrast. तो at that time ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट होगी, आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें जो कि AKI कॉज करती है. अब इमरजेंसी इंडिकेशन फॉर डायलिसिस. ओके, अभी डायलिसिस के लिए इंडिकेशंस क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट एसिडोसिस. एसिडोसिस अगर होगा, pH लेस देन 7.1, आपको पूछ सकते हैं, तो हमें डायलिसिस करना है. देन इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि हाइपरकैलेमिया होगा मोर देन 6.5, और ओवरलोड. ओके, ओवरलोड मतलब रिफ्रैक्टरी पल्मोनरी एडिमा अगर होगा तो भी डायलिसिस करना है, हमें लोड कम करना है. यूरेमिया भी होगा और एनसेफेलोपैथी. सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इमरजेंसी केस, मतलब हमें डायलिसिस करना है. क्या है? एसिडोसिस, pH लेस देन 7.1, हाइपरकैलेमिया मोर देन 6.5, ओवरलोड मतलब कि पल्मोनरी एडिमा होगा, यूरेमिया होगा और एनसेफेलोपैथी होगा. ओके,
So now we'll talk about chronic kidney disease, which is CKD. Definition क्या है? GFR हमेशा लेस देन 60 ml होता है पर मिनट, और मार्कर्स किडनी के जो होते हैं वो डैमेज होते हैं. कॉजेस डायबिटिक नेफ्रोपैथी. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको दिखेगी वो है किमेल्स्टेन विल्सन लीजन्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. ओके, सो द कॉमन कॉजेस डायबिटिक नेफ्रोपैथी in which you can get Kimmelston-Wilson lesions, also hypertension and glomerulonephritis. Okay, so I am just marking these things which are important. Now what are the complications? Complications will be normocytic anemia, renal osteodystrophy. Okay, it is secondary to hyperparathyroidism, and low vitamin D, hyperkalemia and metabolic acidosis. So you have to remember low vitamin D, hyperkalemia, metabolic acidosis. Also there can be normocytic anemia and renal osteodystrophy. Okay, but most important thing you have to remember low vitamin D and metabolic acidosis, which can be complications in CKD. Okay, now renoprotective therapy. What are the renoprotective therapy? We have to give ACI जो कि हाइपरटेंशन के लिए होगा, और SGLT2 इनहिबिटर्स. ओके, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है that can reduce your intraglomerular pressure and proteinuria. So these things are important. I am just marking it. Now let's talk about nephrotic versus nephritic syndrome. In nephrotic there will be heavy proteinuria, which is very important thing you have to remember. Heavy proteinuria. Okay, and also hypoalbuminemia. Okay, hyperlipidemia and generalized edema, hypercoagulability. In examples in nephrotic syndrome will be minimal change disease, you can see in children's. This is very important question. And FSGS. Okay, IV heroin and membranous adults. So मैं आप मार्क करता हूँ, इसमें आपको चीज़ें याद क्या रखनी है. नेफ्रोटिक बोल दिया, इफ दे आर टेलिंग नेफ्रोटिक देन हेवी प्रोटीनूरिया. ओके, हेवी प्रोटीनूरिया मोर देन 3.5. ओके, आल्सो हाइपोअल्ब्यूमिनेमिया, अगर प्रोटीन लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर प्रोटीन लॉस हो रहा है तो कौन सा प्रोटीन लॉस हो रहा है? अल्ब्यूमिन हो रहा है. सो यू हैव टू रिमेंबर, अगर इफ देयर इज प्रोटीन लॉस देन विच प्रोटीन? अल्ब्यूमिन प्रोटीन. आल्सो यू हैव टू कंसीडर दिस जनरलाइज एडिमा. अगर प्रोटीन लॉस हो रहा है तो देयर विल बी एडिमा इन योर लिम्स. ओके, साथ में you have to remember this minimal change disease, you can get this in children's. Okay, and FSGS in IV heroin abusers you have to remember, and membranous which is seen in adult or HBV or malignancy. So these are very important key points for your nephrotic syndrome. Now let's talk about nephritic syndrome. देखो, nephrotic और nephritic syndrome में दो important चीज़ें हैं. nephrotic is proteinuria ज़्यादा होगा, और nephritic में क्या होगा? हेमेचूरिया होगा. हेमेचूरिया मतलब क्या है? यूरिन में आपको RBCs मतलब ब्लड दिखेगा. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन डिफरेंशिएट द नेफ्रोटिक बाय नेफ्रिटिक सिंड्रोम. ओके, अब नेक्स्ट बात है हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन भी आपको नेफ्रिटिक में दिखेगी, जो कि नेफ्रोटिक में मोस्टली नहीं दिखता. और ओलिग्यूरिया होगा. ठीक है, ओलिग्यूरिया भी होगा, एजोथीमिया होगा. और इसमें जो एग्जाम्पल हो गए वो आपको याद रखना है नेफ्रिटिक सिंड्रोम का. पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि लंपी बम्पी इम्यूनो कॉम्प्लेक्स होता है, और IgA नेफ्रोपैथी होगा है, जिसे हम हेनॉस श्लोलेन परप्यूरा या नॉर्मल C3 भी कह सकते हैं. आपको दो नाम याद रखने हैं नेफ्रिटिक में, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और IgA नेफ्रोपैथी. ये दो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको डिफ्रेंशिएट यहाँ पे हो गया. ठीक है, अगर हम नेफ्रोटिक बोल रहे हैं तो होगा प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन का लॉस होगा. और नेफ्रिटिक होगा तो क्या होगा? नेफ्रिटिक होगा तो RBC कास्ट होगा, जिसे हम कहते हैं हेमेचूरिया. ये दो चीज़ें अगर आपको क्वेश्चन में दिखती है तो आप याद कर सकते हो. सो यू हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल्स ऑफ नेफ्रोटिक एज वेल एज नेफ्रिटिक things. Okay, now let's talk about cirrhosis and portal hypertension. What are the complications? Complications will be very simple: ascites, esophageal varices, hepatic encephalopathy and hepatorenal syndrome. These are the complications. Okay, now there is calculation which is known as SAAG calculation, in which serum albumin, ascitic fluid albumin is seen, and also the SAG will be more than 1.1. okay, or you can see
there will be more than 1.1 SAAG, which indicates the portal hypertension, cirrhosis, cardiac failure. And if there is less than 1.1, that it can indicate as non-portal causes like TB, peritoneal and carcinomatous. So you have to remember these things. Okay, very important. So this is the calculation you have to remember. Now spontaneous bacterial peritonitis, this is also one cause. In this, ascitic neutrophil count will be more than 250. Okay, and in this we can give the treatment by IV cefotaxime and plus albumin. We have to start with albumin also. Okay, and if the patient is causing hepatic encephalopathy, which is like kind of neurological thing, so in this you can get the flapping tremors. You have to check it whether there is flapping tremors. If the flapping tremors is present, then you have to diagnose with hepatic encephalopathy. That is, flapping tremors is asterisk, also elevated ammonia. Okay, in this you have to start with lactulose. Lactulose is very important. It is stool softener. Okay, 2 to 3 soft stools per day, and also start with rifaximin. This is important. So this is all about your cirrhosis and portal hypertension. You have to remember the complications, also the SAAG calculations. If there is more than 1.1, then it indicates portal hypertension, and if there is less than 1.1, then it will be non-portal causes. Okay, and if hepatic encephalopathy, it is neurological disorder, it is related to flapping tremors. If the patient is having flapping tremors, then you have to start with lactulose. Okay, and rifaximin. Okay, let's talk about acute pancreatitis. अब acute pancreatitis क्या है? मोस्ट कॉमन गॉलस्टोन्स. ठीक है, गॉलस्टोन्स होगा तो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का मोस्ट कॉमन चीज़ होगी, इसलिए मैं ये करता हूँ. सेकेंड मोस्ट कॉमन क्या है? सेकेंड मोस्ट कॉमन अल्कोहल है. अगर ज़्यादा शराब पीते हैं तो ये चीज़ हो सकती है. ओके, सो द मेन थिंग इज गॉलस्टोन, सेकेंड इज अल्कोहल. यू हैव टू रिमेंबर दिस बोथ थिंग्स. ठीक है, अब डायग्नोसिस 2 of 3 जो कि एपिगैस्ट्रिक पेन. ये क्या होता है? रेडिएटेड टू बैक होता है. तो अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज़ आती है, एपिगैस्ट्रिक अल्कोहलिक पेशेंट ही इज हैविंग सडन एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू बैक, तो हमेशा याद रखना एक्यूट पैंक्रेटाइटिस. ओके, और इसमें जो सीरम अमाइलेज होता है उसका मोर देन 3 होता है. ठीक है, तो ये मोस्ट स्पेसिफिक होता है मार्कर, ये आपको याद रखना है. ओके, तो इससे आप डिफ्रेंशिएट करोगे दूसरे डिजीज के साथ. तो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में गॉलस्टोन इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल, एपिगैस्ट्रिक पेन, रेडिएटिंग टू बैक, सीरम अमाइलेज रेशियो होता है. साइंस कौन सी होती है? क्यूलन साइन होती है. क्यूलन साइन मतलब क्या होता है? पेरिअम्बिकल इखिमोसिस होगा, मतलब कि अम्बिलिकस के साइड में आपको ब्लैकिश कलर दिखेगा, और ग्रे टर्नर साइन जो कि फ्लैंक होगा. ठीक है, कमर पे होगा, मतलब जहाँ पे किडनी है उस साइड में होगा, आपको दिखेगा. ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. अब मैनेजमेंट क्या होगा? हमें स्टार्ट करना है एग्रेसिव आईवी फ्लूइड्स. वी हैव टू स्टार्ट विथ लैक्टेट फिंगर्स एग्रेसिवली, देन एनाल्जेसिया फॉर रिड्यूसिंग पेन. ओके, आल्सो अर्ली एंट्रल फीडिंग, एंटीबायोटिक्स. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इसमें स्टार्ट करनी होती है. बट सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रेसिव फ्लूइड्स हमें देने हैं, लैक्टेट रिंगर्स करना है, एंटीबायोटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब देखते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जो कि क्रोन्स वर्सेस अल्सरेटिव कोलाइटिस है. क्रोन्स डिजीज में क्या होगा? ये किसी भी पार्ट में ये कॉज कर सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन टर्मिनल इलियम में करता है. तो आपको याद रखना है टर्मिनल इलियम विच इज़ मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ जीआई, जो कि क्रोन्स डिजीज कॉज करेगा. ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसम्यूलर इन्फ्लामेशन भी होगा, लीजन स्किप होगी, नॉन कैस्केटिंग ग्रैन्युलोमास होगा, कोबलस्टोन म्यूकोसा, कोई भी चीज़, एनीथिंग देयर कैन बी आस्क इन योर क्वेश्चन. सो कैन दिस आर द वेरी की पॉइंट्स यू कैन रिमेंबर, so it will be easy for you to mark Crohn's disease. So these are the things which is seen in Crohn's disease. Okay, cobblestone mucosa, there can be image also, just google the cobblestone mucosa, you will get that image. Now let's talk about ulcerative colitis. ulcerative colitis में क्या होता है? कोलॉन सिर्फ इन्वॉल्व होगा. ठीक है, और starts in rectum and there will be continuous lesion. You can see the lesions like skip lesions are seen in Crohn's disease, but continuous lesions are seen in ulcerative colitis. Also it can be submucosal inflammation. Pseudopolyps can be seen, lead pipe colon. बराबर है ना कि अगर
कंटिन्यूस लीजन होगा तो वो पाइप की तरह दिखेगा ना, इसलिए लीड पाइप कोलन। ऑन बैरियम इनेमा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक्सिक मेगा कोलन कॉम्प्लिकेशन है और PN का पॉजिटिव। सो एवरीथिंग इज important in Crohn's disease and ulcerative colitis, which is given in this PDF. Every point, colon, rectum, continuous mucosal, submucosal inflammation, pseudopolyps, lead pipe दिखेगा, बेरियम इनेमा पे टॉक्सिक मेगाकोलन कॉम्प्लिकेशन होगा और एन का PN का पॉजिटिव होगा। अब इसका ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट देखिए होता है 5-ASA सल्फा सलाजाइन, जो कि हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में देते हैं और साथ में इसमें भी देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं और एंटी TNF जो कि इन्फ्लिक्सामैब होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स दो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि 5-ASA है और एंटी TNF जो कि इन्फ्लिक्सामैब है। ठीक है, मैं इसको स्टार भी कर रहा हूँ, आपको याद रखने हैं। तो that's all about inflammatory bowel disease. Okay, I think today you are comfortable with my voice because I am using similarly 50% Hindi, 50% English. Okay, but mostly I am using English because many students are giving me suggestions to talk in English. So let's talk about peptic ulcer disease and H pylori. Okay, so peptic ulcer disease, इसमें क्या है, डिओडिनल अल्सर है। इसमें हम क्या करते हैं, मोस्टली जब भी डिओडिनल अल्सर होता है, इसमें आप डिफ्रेंशिएट ऐसे कर सकते हो, द थिंग इन दिस विल बी पेन रिलीव्ड बाय फूड। ओके, मतलब कि खाना खाने के बाद आफ्टर हैविंग योर फूड द पेन इज रिलीव्ड इन डिओडिनल अल्सर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, इसमें वेट गेन होगा, तो सही बात है, ज़्यादा खाएगा पेन कम होगा, ज़्यादा खाएगा पेन कम होगा, वेट गेन होगा। अब गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होगा देखिए, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट कि डिओडिनल अल्सर का जो होता है ये H पाइलोरी कॉज करता है मोर देन 90%। ठीक है, अब गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होगा, पेन वर्सन बाय फूड, मतलब खाना खाएगा तो ज़्यादा पेट में दर्द होगा। इफ इज ईटिंग फूड देन ही इज गेटिंग पेन, सो देयर विल बी वेट लॉस, कम खाएगा कम वेट होगा। हायर रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी, इसलिए बायोप्सी हमें मैंडेटरी करनी होती है। ओके, अब डायग्नोस्टिक्स क्या होता है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं, स्टूल एंटीजन टेस्ट करते हैं। ओके, ट्रिपल थेरेपी होती है 14 डेज की, जिसमें हम प्रोटॉन इनहिबिटर्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं और साथ में एमॉक्सिलिन देते हैं जो कि 1 ग्राम BID होता है। क्लेरिथ्रोमाइसिन देते हैं 500 mg BID, और ज़्यादा अगर होगा तो क्वाड्रुपल थेरेपी भी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें याद क्या रखना है, PPI, एमॉक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, बट मोस्टली PPI ही आपको पूछेंगे, जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ही देते हैं, लेकिन साथ में एमॉक्सिसिलिन भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन है ना, H पाइलोरी का अगर इन्फेक्शन होगा तो हम दे सकते हैं, और गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो बायोप्सी हम मैंडेटरी उसमें करेंगे। ठीक है, तो दोनों का डिफ्रेंशिएट आप समझ गए, पेन रिलीव्ड बाय फूड, पेन वर्सन बाय फूड और इसकी थेरेपी। अब बात करते हैं डायबिटीज मिलिटस। ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होगा इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होगा फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन 126 mg। ओके, और 2 आवर्स का जो OGTT टेस्ट होगा वो मोर देन 200 होगा, और HbA1c जो कि हमारा होता है 3 मंथ्स का होता है, इसमें होगा मोर देन 6.5, और रैंडम ग्लूकोज मोर देन 200। आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है, आज ना कल आपके लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, कल अगर आपने OPD भी खोल दिया तो आपके ये काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अगर रिपोर्ट्स देखेंगे तो आप डायग्नोस करोगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट HbA1c आपको देखना होता है, जो कि 3 मंथ्स का एवरेज काउंट होता है। ठीक है, तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो कि टाइप 1 में होता है, हाई एनियन गैप एसिडोसिस आपको दिखेगा। ठीक है, और DKA में मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आपको कुसुमल ब्रीदिंग टाइप दिखता है, कीटोन्स लेवल इंक्रीज होती है। इसमें ट्रीटमेंट देते हैं हम नॉर्मल सलाइन, रेगुलर इंसुलिन, पोटेशियम रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब टाइप 2 में क्या होगा, ग्लूकोज मोर देन 600 होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस DKA, जिसमें हम देखते हैं कुसुमल ब्रीदिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल सलाइन, रेगुलर इंसुलिन इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी। ओके, सो फर्स्ट लाइन फार्माकोथेरेपी, हमेशा हम मेटफॉर्मिन से शुरुआत करते हैं। कोई भी चीज़ डायबिटीज़ की टाइप 2 की होगी तो मेटफॉर्मिन से दी जाती है। तो इसमें क्या करेगा मेटफॉर्मिन, इनहिबिट हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस और रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस इन CKD, ये इनहिबिट करेगा या कम करेगा। कार्डियोरिनल प्रोटेक्शन में हम SGLT2 इनहिबिटर्स देते हैं और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट भी देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी मेटफॉर्मिन को मार्क किया,
ठीक है, और SGLT2 inhibitors और GLP-1 receptor agonist. So this is everything about diabetes mellitus. You have to remember the treatment strategy for type 1 and type 2. Okay, so let's talk about thyroid disorders, which is Graves versus Hashimoto's. So thyroid में क्या देख सकते हैं आप, ग्रेव्स डिजीज. ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, TSH रिसेप्टर्स जो है एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज होती है. और इसमें आप देख सकते हो डिफ्यूज गॉइटर विद ब्रूट. ओके, ऑप्थेल्मोपैथी भी आपको दिखेगा, प्रोप्टोसिस या एक्सोप्थेल्मोस आपको इमेज भी इसकी दे सकते हैं. दे विल गिव द इमेज ऑफ दिस ऑप्थेल्मोलॉजी कंडीशन. सो another thing will be pre-tibial myxedema. Okay, and treatment will be methimazole या PTU फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं प्रेगनेंसी के. आपको ऑब्जीगाइनी से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और आगे अगर इससे कुछ नहीं होता तो रेडियो एक्टिव आयोडीन या बीटा ब्लॉकर्स. ठीक है, तो आपको याद क्या क्या रखना है ग्रेव डिजीज में. फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर डिफ्यूज गॉइटर विद ब्रूट. ऑप्थेल्मोपैथी होती है इसमें, कौन सी होती है, एक्सोप्थेल्मोस. और आपको प्रीटिबियल मिक्सिडेमा दिखता है, साथ में आपको मिथामेजोल देना है, PTU देना है प्रेगनेंसी में. तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रीड इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाशिमोटो थायराइडिटिस. ओके, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट एंटी TPO एंड एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. हर्टल सेल्स ऑन बायोप्सी इंपॉर्टेंट. ओके, वेट गेन होगा. हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट कम होता है, हाइपो में वेट गेन होता है. ठीक है, कोल्ड इंटॉलरेंस, फैटिक, कॉन्स्टिपेशन, डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ डीप टेंडोन्स. ओके, इसमें हम लियोथायरोक्सिन देते हैं. थायराइड कम है इसलिए हमें लियोथायरोक्सिन देना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ. एंटी टिपो वेरी इंपॉर्टेंट, हर्टल सेल्स इंपॉर्टेंट है, वेट गेन होगा. ओके, और दूसरा क्या है, लिवोथायरोक्सिन. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है, मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. अब एक थायराइड स्टॉर्म चीज़ है, दिस इज वेरी इमरजेंसी कंडीशन. इन दिस यू कैन गेट फीवर, टैकिकार्डिया, डिलीरियम, हाई आउटपुट रीनल फेलियर. ओके, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं प्रोप्रानॉल प्लस PTU और ल्यूगोस आयोडीन. ओके, और हाइड्रोकोर्टिसोन भी हम स्टार्ट करते हैं. तो याद रखिए इमरजेंसी होती है, थायराइड स्टॉर्म होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट कुशिंग सिंड्रोम. ओके, कुशिंग सिंड्रोम के देखिए क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं. मून फेसिस, बफेलो हम, सेंट्रल ओबेसिटी, एब्डोमिनल पर्पल स्ट्राई होगा, इमेज भी दे सकते हैं इसकी. प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होगा, हाइपरटेंशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया. आपको याद क्या क्या करना है, मून फेसिस देखना है, बफेलो हम देखना है, और एब्डोमिनल पर्पल स्ट्राई. ये चीज़ें हैं जो कि आपको आसान भी है और याद भी रहेगी. टेस्ट में क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट में 24 आवर्स यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल देखते हैं. ठीक है, या लेट नाइट सलाइवरी कॉर्टिसोल देखते हैं, या 1 mg ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट देते हैं. ये टेस्ट आपको याद रखनी है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है. सेकेंड, डिफ्रेंशिएट कॉजेज. अभी डिफ्रेंशिएटिंग कॉजेज क्या होता है, ACTH लेवल्स होते हैं. ठीक है, तो ये सारे डिफरेंशियल कॉजेज है, आप एक बार पढ़ लेना. सो वी आर डन विथ कुशिंग सिंड्रोम. ओके, नाउ एड्रिनल इनसफिशिएंसी. So next topic is adrenal insufficiency, which is known as Addison's disease. Okay, so the etiology will be, it is autoimmune adrenalitis developed countries, which is seen in developed countries, and tuberculosis in developing countries. So it is very important thing, you have to remember these both things. So features, what will be the features? Features will be hyperpigmentation because of elevated ACTH. Okay, also hypotension, hyponatremia, hyperkalemia, hypoglycemia, and craving for salts. So the main important thing is hyperpigmentation, you have to remember, due to elevated ACTH levels. Okay, also everything will be hypo, only hyperkalemia will be increased. Okay, so diagnosis will be cosinotropin, which is ACTH stimulation test. Also it is showing failure of peak cortisol to exceed 18 mcg. Okay, so this is very important thing. So I am just marking the things which are very important. Okay, so the adrenal crisis management, what are the management? We have to start immediately with IV hydrocortisone 100 mg bolus, and also aggressive normal saline administration. So do not wait for test results, directly we have to start with aggressive treatment. Which both treatments you have to remember, immediate IV hydrocortisone and aggressive normal saline. Okay, so let's talk about ischemic stroke and intracranial hemorrhage, which is very important topic from neuroanatomy and also from medicine. So let's begin. Initial diagnosis test will be non-contrast CT head. Why? Because this is fast thing you can do.
as a diagnostic. Okay, it rule out hemorrhage before thrombolysis. Now ischemic stroke window, this is window period, which is very important thing. So the both things are very important, diagnostic test and also the window. It is intravenous TPA, that is altiplase. We have to start within 4 to 5 hours of symptom onset. We have to start with altiplase, or also endovascular thrombectomy up to 24 hours. So management, medical management will be altiplase and procedure will be endovascular thrombectomy up to 24 hours for large vessel occlusion. So these both things are very important. Now epidural hemorrhage, subdural hemorrhage and subarachnoid hemorrhage. These three hemorrhages are very important. So in epidural you will get middle meningeal artery tear. Okay, this artery is very important in epidural hemorrhage. Also lucid intervals एंड बाइकॉन्वेक्स या लेंटिकुलर हाइपरडेंसिटी ऑन सिटी, मतलब कि आपको तीन चीज़ें दिखेगी. कौन सी दिखेगी? ल्यूसिड इंटरवल दिखेगा, बाइकॉन्वेक्स वाला सिटी पे दिखेगा और मिडल मेनिंजियल आर्टरी टियर होगा इसके अंदर. सो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है. अब सब ड्यूरल में क्या होगा? सब ड्यूरल में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको दिखेगी वो वेंस का टीयरिंग दिखेगा, जो कि ब्रीजिंग वेंस होती है और एल्डरली लोगों में होता है और अल्कोहलिक्स में होता है. यहाँ पे क्रिसेंट शेप का हाइपरडेंसिटी दिखता है स्यूचर लाइंस पे. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं. ठीक है, सब अराक्नॉइड हेमोरेज की बात करते हैं. इसमें क्या होता है? इसमें होता है बेरी एन्यूरिज्म रप्चर होता है, वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ. अगर क्वेश्चन में आपको वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ आता है तो आपको करना है सब अरेक्नॉइड हेमोरेज. ठीक है, बेरी एन्यूरिज्म का रप्चर होगा, थंडर क्लैप वाला हेडेक होगा. ठीक है, और ब्लड इन बेसल सिस्टर्नी. सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. सो इसके साथ हमारा होता है इश्केमिक स्ट्रोक और इंट्राक्रैनियल हेमोरेज. दो चीज़ें हम मैनेजमेंट के लिए करते हैं, एल्टीप्लेस करते हैं और प्रोसीजर में एंडोवेस्कुलर थ्रोम्बेक्टोमी करते हैं. अब बात करते हैं मेनिंजाइटिस, जो कि बैक्टीरियल वर्सेस वायरल या फंगल. ठीक है, तो क्लासिकल ट्रायल क्या होगा मेनिंजाइटिस का? सबसे इंपॉर्टेंट होगा फीवर होगा, नचल रिजिडिटी होगा, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा और कर्निंग एंड ब्रूजन की साइन होगा. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है. ये अगर होगा तो समझिए कि मेनिंजाइटिस है. अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम CSF फाइंडिंग्स करते हैं. ठीक है, अगर बैक्टीरियल होगा तो हायर न्यूट्रोफिल्स और हाई प्रोटीन आपको दिखेगा, ग्लूकोज लेवल कम दिखेगा इसमें. ठीक है, तो याद रखना है हाई न्यूट्रोफिल. बैक्टीरिया मतलब न्यूट्रोफिल्स का हाई होना है. वायरल होगा तो हाई लिम्फोसाइट्स होगा, नॉर्मल स्लाइटली हाई प्रोटीन होगा और नॉर्मल ग्लूकोज होगा. और TB फंगल होगा तो हाई लिम्फोसाइट्स होगा और हाई प्रोटीन होगा और लो ग्लूकोज और कॉब वेब क्लॉट दिखेगा. तो अपने को याद क्या रखना है इसमें? हाई न्यूट्रोफिल्स किस में होगा? बैक्टीरियल में होगा. ठीक है, वायरल में और TB में दोनों में हाई लिम्फोसाइट्स है, लेकिन वायरल में जो है वो क्या है? देखिए नॉर्मल ग्लूकोज होगा. ठीक है, और TB फंगल में क्या होगा? लो ग्लूकोज होगा और साथ में कॉग वेब क्लॉट्स दिखेंगे आपको. तो ये चीज़ें जो है वो आपको डिफ्रेंशिएट करेगी बैक्टीरियल, वायरल एंड TB से. ठीक है, और अब इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा सिप्ट्रैक्सोन हम देते हैं, वैनकोमाइसिन, एम्पिसिलिन देते हैं. ठीक है, साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देते हैं, डेक्सामेथासोन. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको सिप्ट्रैक्सोन, जो कि क्वेश्चंस पूछते हैं. अब देखते हैं एपिलेप्सी या स्टेटस एपिलेप्टिकस. ओके, डेफिनेशन क्या है एपिलेप्सी की? जो कि मोर देन 2 अनप्रोवोक्ड सीजर्स. ओके, 24 आवर्स में, इसका मतलब एपिलेप्सी है. स्टेटस एपिलेप्टिक्स मतलब क्या? सीजर लास्टिंग फॉर 5 मिनट्स और मोर देन 2 सीजर्स विदाउट फुल रिकवरी बिटवीन. तो दोनों में ये डिफरेंस है. अब इसमें मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, मैनेजमेंट होता है 0 to 5 मिनट्स में हम ABC ऑक्सीजन ग्लूकोज चेक करते हैं. ठीक है, 5 to 20 मिनट्स में फर्स्ट लाइन हम लोरेजिपाम देते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. 20 to 40 मिनट में सेकेंड लाइन क्या होता है? IV फॉस्फेंटोइन और लेविसिट्राम और वॉल्प्रेट होता है. और मोर देन 40 मिनट अगर होगा तो हम जनरल एनेस्थेशिया देते हैं, प्रोपोफॉल या मिडाजोलम. ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जो कि एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन मोस्टली IV लोरेजिपाम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. ओके, तो इसी के साथ 25 देखते हैं हम, जो पार्किंसन डिजीज. व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी? इट इज लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सब्सटेंशियल निग्रा. ओके, और लिवी बॉडीज भी आपको दिखेगी, और साथ में लिवी बॉडीज मतलब क्या होता है? अल्फा सिन्यूक्लियन आपको कंपोज्ड वाला दिखेगा.
अब कार्डियल मोटर ट्राइड यहाँ पे यूज होता है। टी स्टैंड्स फॉर ट्रिमर, आर फॉर रिजिडिटी, एकाइनेजिया मतलब ब्रैडिकाइनेजिया और पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पार्किंसन इससे आप डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये 4 चीज़ें अगर आपको दिखेगी मतलब पार्किंसन है। और क्या होगा, लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सब्सटेंशियल निग्रा। ठीक है, ये भी पैथोफिजियोलॉजी है। अब थेरेपी क्या हम देते हैं, लिवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, ये हम चीज़ें दोनों देते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पार्किंसन से आपको पूछी जा सकती है, आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रामिपेक्सोल और रोपिनिरॉन हम देते हैं यंग पेशेंट्स में, जो कि लेस देन 60 वाले होते हैं, उनमें हम ये दोनों चीज़ें देती है। ठीक है, लेकिन मेन ट्रीटमेंट क्या है, लिवोडोपा या कार्बिडोपा। अब बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। पैथोलॉजी होती है एटोइम्यून डीमाइलेशन ऑफ सीएनएस सेंट्रल माइलन है। ठीक है, जो कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। इसमें हम एक ट्राइड देखते हैं जिसका नाम है चारकॉट ट्राइड। मतलब इसमें क्या होगा, इंटेंशनल ट्रीमर्स हो गए, स्कैनिंग स्पीच होगी और निस्टैग्मस होगा, जो कि आपको ये ट्राइड याद होना चाहिए। देन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा, रिलैप्सिंग रेमिटिंग डिफिशियंसी इन यंग फीमेल्स, ऑप्टिक न्यूराइटिस मतलब पेनफुल मोनोऑक्यूलर विजन लॉस होगा। और क्या होगा, एक साइन होगी हर्मिट साइन दिखेगी, मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक डाउन स्पाइन ऑन नेक फ्लेक्शन, मतलब कि अपनी नेक नीचे करने के बाद इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील होगा। और उत्तव फिनोमेन होगा जो कि वर्सनिंग इन हीट। मतलब ये सारी चीज़ें जो है, ये साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है, एमआरआई फाइंडिंग्स में क्या देखेंगे हम, एमआरआई फाइंडिंग्स में हम देखेंगे पेरीवेंट्रिकुलर वाइट मैटर डीमाइलिनेटिंग प्लेक्स परपेंडिकुलर टू वेंट्रिकल्स, जिसे हम डाउसन्स फिंगर्स भी कहते हैं। मतलब आपको ये डाउसन फिंगर वाली चीज़ याद होनी चाहिए। सीएसएफ पे हम देखते हैं ओलिगोक्लोनल आईजीजी बैंड्स देखते हैं। ट्रीटमेंट में एक्यूट फ्लेयर में क्या होता है, हम देते हैं आईवी मिथिल प्रेडनिसिलोन। ठीक है, और डिजीज मॉडिफाइंग में हम इंटरफेरॉन बीटा देते हैं, जो कि ग्लैटिरामिर है, और ऑक्रिलिजुमैब ड्रग देते हैं। तो ये ड्रग्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एक्यूट में देते हैं आईवी मिथिल प्रेडनिसिलोन। ठीक है, अब देखते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलेसीमिया। ठीक है, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या होता है, इसमें लो फेरिटिन होता है। ठीक है, जो कि मोस्ट स्पेसिफिक है। हाई टीआईबीसी होगा, लो सीरम आयरन होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें लो फेरिटिन होगा और हाई टीआईबीसी होगा। ये अगर आपको आ गया तो समझिए ये है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, और इसमें फीचर्स क्या होगा, पाइका कोइलनकिया और एंगुलर चिलाइटिस होगा। अब बीटा थैलेसीमिया में हम क्या देख सकते हैं, इसमें नॉर्मल या हाई फेरेटिन होगा, नॉर्मल टीआईबीसी होगा, हाई आरबीसी काउंट होगा। मतलब आरबीसी काउंट ज़्यादा है, टीआईबीसी नॉर्मल है। और इसमें जो इंडेक्स होता है मेंसलर इंडेक्स, उसमें लेस देन 13 होगा। ठीक है, टारगेट सेल्स दिखते हैं ब्लड स्मीयर में। तो ये चीज़ें जो है हमें डिफ्रेंशिएट करने में इजी होती है थैलेसीमिया से और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से। अब बात करते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो कि विटामिन B12 होता है, वर्सेस फोलेट डिफिशियंसी। अब इसमें क्या है, इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस की वजह से होता है, जो कि न्यूक्लियर सिस्टोप्लाज्मिक एसिंक्रोनस मैचुरेशन की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। पेरिफेरल स्मीयर में दिखता है हमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, मतलब मोर देन 5 लोब्स। ठीक है, अब विटामिन B12 और फोलेट डिफिशियंसी का डिफरेंस देखते हैं। अब विटामिन B12 में, इन विटामिन B12 डिफिशियंसी इट इज कॉज्ड बाय पर्निशियस एनीमिया विच इज एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर ABS। ओके, स्ट्रिक्ट वीगन पीपल्स में दिखेंगे। ठीक है, टर्मिनल इलियम रिसेक्शन और लैब में हाई मिथिल मैलोनिक एसिड दिखता है एंड होमोसिस्टीन। ओके, फीचर्स विल बी सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन विच इज SCD ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स विल बी कॉज्ड बाय पर्निशियस एनीमिया, it can be find in vegan diet peoples, terminal ileum resection में भी होगा also, this thing will be important. Okay, so I am marking the things which are very important, you have to remember it. So let's talk about folate deficiency. It is caused by alcoholic people. Okay, methotrexate से भी होता है, प्रेगनेंसी में होता है, पुअर डाइट में होता है। लैब में क्या दिखेगा, हाई होमोसिस्टीन दिखेगा। सो द डिफरेंस इज हाई होमोसिस्टीन इन फोलेट डिफिशियंसी एंड विटामिन B डिफिशियंसी में आपको क्या दिखता है, उसमें भी आपको हाई होमोसिस्टीन ही दिखेगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो दिस आर द थिंग्स, बट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फोलेट डिफिशियंसी, देर आर नो न्यूरोलॉजिकल symptoms, but in vitamin B12 you can see neurological symptoms. Okay, in
vitamin B12 deficiency, as here written SCD. Now let's talk about acute leukemia, okay, and also AML, AL versus AML. So acute lymphoblastic leukemia, इट इज़ मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड, आपको याद रखना है ये चाइल्डहुड वाला ल्यूकेमिया है, ठीक है. एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर ब्लास्ट सेल्स विल बी मोर देन 20% इन बोन मैरो, एंड ऑल्सो TDT विल बी पॉजिटिव, ओके. ऑल्सो CALLA CD10 विल बी पॉजिटिव, मीडियस्टिनल मास दिखेगा T सेल, ओके, और CNS टेस्टिकुलर प्रोफिलैक्सिस रिक्वायर्ड. सो एक्यूट ALL में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चाइल्डहुड की हिस्ट्री मिलेगी. चाइल्डहुड मतलब बच्चे में होगा, इट विल प्रेजेंट इन चिल्ड्रन, ओके. एंड इन AML इट विल बी एक्यूट ल्यूकेमिया इन अडल्ट्स. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, अडल्ट्स में ये चीज़ होगी. ऑल्सो इट विल बी माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड और रॉड्स आर प्रेजेंट, ठीक है. सो दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन AML. नाउ विल टॉक अबाउट M3 सब टाइप, ओके. M3 सब टाइप में आपको याद क्या रखना है, T1517 आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और हाई रिस्क ऑफ DIC, हाई रिस्क ऑफ DIC ड्यू टू टिश्यू फैक्टर रिलीज. ट्रीटमेंट में क्या हम देते हैं, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड और आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड हम देते हैं, जो कि ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है, हमें याद रखने हैं. ये पॉइंट्स जो मैं दिख रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो ये आप कर लेना. अब लास्ट टॉपिक है हमारा सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोस, जो कि हम SLE कहते हैं. ये क्या हाइपर सेंसिटिविटी है, ये थर्ड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है. दिस कॉजिंग मल्टी सिस्टम इम्यूनो कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, मतलब मल्टी सिस्टम में है, इट इज मल्टी सिस्टम इम्यूनो कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन. सो द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया विल बी मेलर रैश, okay, which spares nasolabial folds, discoid rash, photosensitivity, oral ulcers, non-erosive arthritis, serositis, renal disease. So these things are very important, but you have to remember the important things like malar rash, discoid rash, photosensitivity, okay. This can be very important key points for your exam. Now we can see autoantibody profile, ANA most sensitive, ठीक है, and anti-DS DNA highly specific. These two things you have to remember, which is ANA most sensitive and anti-DS DNA which is highly specific, and also anti-Smith which is also specific, okay. And if there is anything with neonatal lupus or congenital heart block, then you have to go for anti-RO. रो मतलब छोटा बच्चा रोता है, इसलिए neonatal, okay. You have to remember by this kind of tricks. So anti-RO और SSA और anti-LA in neonatal lupus या congenital heart block में होगा. What will be treatment? Hydroxychloroquine, okay, for all SLE patient to reduce flares and mortality. मतलब हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देना है इसमें, प्लस क्या देना है हमको, स्टीरॉइड्स देना है, ठीक है. तो ये जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है, और साइक्लोफॉस्फोमाइड फॉर सीवियर नेफ्राइटिस. Then these are the important things in nephrology patient. In nephrotic patients we have to give it cyclophosphamide, और normally we have to hydroxychloroquine देना है सारे SLE patients में, ठीक है. तो इसी के साथ all 30 topics with explanations हमारे complete हो गए हैं, जो कि high yield है, बहुत important है, इसमें से आपको questions आएंगे ही आएंगे. That's all. Thank you so much. ऐसे ही वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe.